السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کو 800 الیکٹرانک بسیں مختص کرنے ریونت ریڈی کی نمائندگی۔ ڈیزل کی بسیں کو الیکٹرک میں تبدیل کرنے کا موقع فراہم کریں، مرکزی وزیر سے ملاقات۔ BRS میں پارٹی کی قیادت کا جھگڑا، کویتا اور KTR میں سرد جنگ، پارٹی قائدین داخلی انتشار سے پریشان۔ وفق قانون کے خلاف انسانی زنجیر احتجاج، شہر میں مجلسی ارکان مقننہ و کارپوریٹرز کا نظم، اضلاع اور ٹاؤنز میں بھی مظاہرے۔ مس ورلڈ مقابلے سے برطانوی حسینہ کی دستبرداری، جامع تحقیقات کروانے KTR کا مطالبہ۔ اور شمس آباد علاقے میں خوفناک سڑک حادثہ، 1 ہلاک 3 زخمی، بے قابو تیز رفتار لاری حادثے کی وجہ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر صنعت SD کمارا سوامی سے درخواست کی ہے کہ حیدرآباد کے لیے مزید 800 الیکٹرک بسیں مختص کی جائیں۔
ہفتے کی رات دہلی میں انہوں نے مرکزی وزیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر سے درخواست کی کہ 800 الیکٹرک بسیں مختص کی جائیں۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ حالیہ دنوں میں حیدرآباد کے لیے 2000 بسیں مختص کی گئی تھیں، لیکن موجودہ شہری ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے پی ایم ای ڈرائیور اسکیم کے تحت مزید 800 بسوں کو منظوری دی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر سے اپیل کی کہ موجودہ ڈیزل بسوں کو بھی ریٹریٹمنٹ کے ذریعے برقی بسوں میں تبدیل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نیتی آیوگ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مختلف پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں میٹرو کو توسیع دینے کی ضرورت ہے۔ پچھلی حکومت نے 10 سال میں کسی قسم کی توسیع نہیں کی ہے۔ حکومت میٹرو فیز 2 کو توسیع دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس فیز میں 5 کوریڈور ہیں، جملہ 76 کلومیٹرز ہیں، اور یہ پروجیکٹ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت مل کر کرنا ہے۔ جملہ خرچ 24,269 کروڑ روپے مرکزی حکومت، 18% یعنی 4,230 کروڑ روپے ریاستی حصہ، 30% 7,313 کروڑ، قرض 48% 11,693 کروڑ حیدرآباد فیز 2 کے تحت مرکزی حکومت کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ ریجنل رنگ روڈ رنگ ریلوے پروجیکٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بی آر ایس پارٹی میں کے سی آر بھگوان ہیں تو شیطان کون ہیں؟ سیاسی حلقوں میں زبردست ہلچل چل رہی ہے۔ بی آر ایس قائدین پارٹی کے داخلی انتشار سے پریشان ہیں۔ پارٹی کی قیادت کا جھگڑا کے سی آر کی مداخلت کے بغیر کم نہیں ہوگا۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ بی آر ایس پارٹی میں کے سی آر بھگوان ہے تو شیطان کون؟ یہ سوال سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا رہا ہے اور بی آر ایس پارٹی میں بھونچال پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ کے سی آر کی دختر کویتا کے ہیں۔ اس سے پہلے کویتا نے کے سی آر کو مکتوب لکھتے ہوئے ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے تھے۔ اس کے بعد کویتا کے تازہ بیان نے کے ٹی آر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کے ٹی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا کہ پارٹی میں مخبر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی میں مخبر کون ہے؟ کویتا کے مکتوب کو منظر عام پر لانے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات عام ہے، اپوزیشن میں حکومت کے مخبر ہوتے ہیں تاکہ اپوزیشن کی حکمت عملی پر نظر رکھی جا سکے۔ کویتا کے مکتوب کو منظر عام پر لانے والا مخبر کون ہے، اس کا پتہ چلنے تک یہ معمہ حل نہیں ہوگا۔ کویتا کے بیرونی دورے کے دوران مکتوب کو افشا کیا گیا۔ جب کویتا بیرونی دورے سے واپس ہوئی، شمس آباد ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال بھی کیا گیا۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ وہ مخبر کون ہیں کویتا اور کے ٹی آر اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس پورے معاملے میں کے سی آر خاموش ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکتوب کے افشا ہونے سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کانگریس پارٹی کو یا پھر کے سی آر خاندان کے کسی فرد کو؟ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بی آر ایس میں ہلچل مچ گئی ہے کہ کانگریس پارٹی کو مجالس مقامی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ بی آر ایس کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ضائع ہو جائے گا، کیونکہ کانگریس حکومت کو اپنی کارکردگی پر عوام کے ووٹ بٹورنا مشکل ہے۔ دوسرا، کے سی آر خاندان کے جھگڑے کا بھی جائزہ لیں تو کے ٹی آر کو چیف منسٹر بنانے کی آرزو کے سی آر کی دلی خواہش ہے۔ انتخابات میں پارٹی شکست کے بعد کے سی آر کی کارکردگی اور دمخم میں کافی کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے پارٹی قیادت کو لے کر جھگڑے چل رہے ہیں اور تنقیدیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ کے ٹی آر کو لے کر پارٹی میں شروع سے ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ ایسے میں پارٹی کی قیادت ہریش راؤ کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ یہ بات کویتا کو ہضم نہیں ہوگی، اس لیے وہ پارٹی کی صدارت حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اپنے صدارت میں چلنے والی جاگرتی کے ذریعے وہ عوام کے درمیان میں ہیں، اس کا وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ اطلاع کے مطابق کویتا کے سی آر سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہیں۔ اگر ان کو پارٹی کی صدارت نہیں دی جائے گی تو وہ الگ پارٹی جاگرتی کے نام پر یا ٹی بی آر ایس پارٹی قائم کرے گی۔ پارٹی کی اطلاع کے مطابق سارا جھگڑا پارٹی کی قیادت کا ہے اور پارٹی کے اثاثوں کا ہے جو کروڑوں روپے میں ہے۔ اس پر قبضہ بھی ایک مقصد ہے۔ بہرحال جب تک کے سی آر اپنی زبان نہیں کھولیں گے، بی آر ایس پارٹی کی کشتی بھنور سے نہیں نکلے گی۔ بیورو رپورٹ 4 ٹی وی نیوز۔
वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर शहर और अजला में इंसानी जंजीर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी कायदीन, उलमाए कराम, मशाइख़ निज़ाम, वकला, डॉक्टर्स, सहाफ़ी, नौजवान और ख़वातीन, ताजिर व समाज के दीगर मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस एहतजाज में शिरकत करते हुए इस सियाह कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में कंचन बाग फिसल बंडे से एक तवील इंसानी जंजीर बनाई गई। ये जंजीर चंद्रायन गुट्टा से फलकनुमा, दूसरी तरफ बंडला गुड़ा व मुत्तसिल इलाके तक देखी गई। इस जंजीर में आम मुसलमानों के अलावा इस इलाके से गुजरने वालों ने अपनी गाड़ियों को रोक कर कुछ देर तक इस जंजीर से जुड़कर एहतजाज में शामिल रहे। मजलिस अरकान मुक़र्रना अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, मिर्ज़ा रहमत बेग, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा शहर में मजलिस के 40 से ज़ायद कॉरपोरेटर्स, मजलिस इब्तदाई सदर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीरों का नज़्म किया। ईदी बाजार, बंद नाका, रेन बाजार, याकूतपुरा, रनमस्तपुरा, मूसा बाउली, महात्मा गांधी बस टर्मिनल, दारुश्शिफा, बहादुरपुरा, लाड़ बाजार, फतह दरवाज़ा, हसन नगर, राजेंद्र नगर, हुसैनी आलम, मूसा कादरी, चार मीनार, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मासाब टैंक, अंबरपेट, तिलकलगुड़ा, बोराबंडा, यूसुफ गुड़ा, नानल नगर, गच्छी बाउली और दीगर इलाकों में 15 से 20 मिनट के दौरान इंसानी जंजीर के मुजाहिरे देखे गए। चंद इलाकों में हिंदू और सिख तबके के अफराद भी इस एहतजाज में देखे गए। ख़वातीन की काबिल लिहाज तादाद ने भी इसमें हिस्सा लिया। वक्फ कानून के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड की एहतजाजी कमेटी के रुकन मौलाना गयास अहमद रशादी ने बताया कि नमाज ज़ोहर के बाद शहर की कई जामे मसाजिद के रूबरू अवाम इस एहतजाज के लिए इकट्ठे हो गए थे। मुकर्ररा वक्त पर एक दूसरे के हाथों को जोड़कर यह जंजीर बनाई गई। मेहदीपट्टनम चौराहे पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने इंसानी जंजीर एहतजाज को कामयाब करार दिया। उन्होंने बताया कि मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, मासाब टैंक, बाजार घाट के इलाकों में अवाम ने इस एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी ने बताया कि हल्का असम्बली याकूतपुरा में मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज की इयानत से बड़े पैमाने पर इंसानी जंजीर बनाई गई। बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमर आबिदीन के हवाले से बताया गया कि शहर के अलावा अजला में भी एहतजाज गैर मामूली कामयाब रहा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1 जून तक इस कानून के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। अजला से मौसूला इत्तला के मुताबिक रियासत के बेशतर अजला और टाउन्स में इंसानी जंजीरें बनाई गईं। पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आज इस वक्फ के कानून जो बनाया गया है, काला कानून, उसके खिलाफ एहतजाजी तौर के ऊपर 2 से 2:30 बजे तक जो ह्यूमन चेन का एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया था, अब 2:55 अब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें और उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम ही अवाम की तरफ से हुकूमत हिंद को ये कहते हैं कि अवाम की जज्बात की कदर कीजिए, इस काले कानून को वापस लीजिए। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के 3 मुतवातिर काफिले अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। 23वें काफिले में 299 आज़मीन और 24वें काफिले से 402 आज़मीन रवाना हुए, जबकि 25वां काफिला देर शाम रवाना हुआ। काफिलों की रवानगी के मौके पर आज़मीन से खिताब करते हुए सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने आज़मीन से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हज कमेटी आज़मीन की रवानगी के बेहतर से बेहतर इंतजामात कर रही है, ताहम सफ़र हज और अर्ज़ मुक़द्दस पर चंद एक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने तलकीन की कि किसी शिकवे शिकायत के बगैर अल्लाह का शुक्र अदा करें और पुरसुकून तरीके से मनासिक हज अदा करें। रियासती वज़ीर इंचार्ज हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने एक काफ़िले के आज़मीन को विदा करते हुए कहा कि मुसलमानों की ये आरज़ू रहती है कि वह ज़िंदगी में एक बार हज करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सफ़र हज के इंतज़ामात में कोई कोताही नहीं करेगी, ताहम कोई उज़्र रह जाए तो इसके लिए मुआफ़ी चाहते हैं। उन्होंने आज़मीन से कहा कि वो रियासत, मुल्क और दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआ करें। इस मौके पर रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक़ सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ के अलावा हज कमेटी के दीगर ओहदेदारान, हज कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। ताहाल 7,563 आज़मीन हैदराबाद से अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं।
हैदराबाद से जुमला 12,000 आजमीन सफर हज को रवाना हो रहे हैं, जिनमें तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ साथ दीगर रियासतों के आजमीन भी शामिल हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने शहर में जारी मिस वर्ल्ड मुकाबलों से बरतानवी हसीना मेला मागी की दस्तबरदारी पर हुकूमत से सवाल किया और तेलंगाना समाज की जानिब से इस हसीना ने से कल्बी माजरत ख्वाही की। अपने एक बयान में बीआरएस कायद ने बरतानवी हसीना की जानिब से लगाए गए इल्जामात की गैर जानिबदाराना और जामे तहकीकात करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड मुकाबले में इस हसीना ने एहनत आमेजी के इल्जामात आयद किए थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरजमीन ख़वातीन की इज्जत व एहतराम करती है। तेलंगाना की तहजीब किसी खातून का एहानत की इजाज़त नहीं देती। वो भी एक लड़की के बाप हैं और वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। बरतानवी हसीना ने अपने तजुर्बात को बिला खौफ बयान किया है। उनकी इस जुरात की वो सताइश करते हैं। केटीआर ने कहा कि इस हसीना के इल्जामात की जामे तहकीकात करवाने के बजाय हुकूमत इसको मुस्तरद कर रही है, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। अपने एक अलहदा ट्वीट पैगाम में बीआरएस कायद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में नीति आयोग के इजलास में शिरकत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खुशगवार मुलाकातों पर तबसरा करते हुए कहा कि नीति आयोग के गुज़िश्ता इजलास में वज़ीर आला ने शिरकत नहीं की थी। अब चूंकि नेशनल हेराल्ड केस में उनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नाम लिया है, शायद ये एक वजह हो सकती है। बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव से पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने मुलाकात की। यह मुलाकात इरवली फार्म हाउस पर हुई। कविता के लिखे गए मकतूब और उसके बाद दिए गए बयानात के बाद पैदा होने वाले हालात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस के मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों के बारे में भी बातचीत की। इस मुलाकात की अहमियत ज्यादा इसलिए है कि 21 जून को अमेरिका में एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए केटीआर 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। दौरे से पहले ही यौम तासीस प्रोग्रामों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बहरीन में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की दहशतगर्दाना साजिशों को बेनकाब किया है। सदर मजलिस ने कहा कि जब तक पाकिस्तान इन दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग फराहम करना और फरोग देना बंद नहीं करता, उस वक्त तक ये मसला खत्म नहीं होगा। उनका कहना था कि हिंदुस्तान ने इस मसले से निपटने के लिए कोशा है और उन्होंने इस मसले की संगीनी को समझने की भी अपील की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर शदीद हमला किया है। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क बताते हुए इसकी पॉलिसियों की भी जमकर तनकीद की। इस मौके पर सदर मजलिस ने कहा कि हमारी हुकूमत ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को यह समझा सकें कि हिंदुस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से किस तरह के खतरों का सामना कर रहा है। बदकिस्मती से हमारे कई बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। इस मसले की जड़ पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत, मदद और उनकी सरपरस्ती करना बंद नहीं करता, तब तक ये खतरा बना रहेगा। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि आंध्रा को गोदावरी का पानी मुंतकिल कर रहे हैं तो रेवंत रेड्डी उनकी आरती उतार रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की गुरुदक्षिणा अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की नाअहली की वजह से तेलंगाना 65 टीएमसी कम इस्तेमाल किया है। और हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी नीति आयोग के इजलास में शिरकत क्यों की जब मरकजी हुकूमत इस मामले में ताउन नहीं कर रही है। दिल्ली में सिर्फ फोटो खिंचवा कर आ गए। बीआरएस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज दश्त करने की तैयारी कर रही है। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी मुतालबा करती है कि हुकूमत फौरन कुल जमाती वफ्द लेकर मरकजी हुकूमत से मुलाकात करे। इसके लिए असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करें, जंगचरला प्रोजेक्ट की मुखालिफत करते हुए मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद पेश करें और मरकज़ को रवाना करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर जिद्दोजहद करें। कांग्रेस हुकूमत गहरी नींद सो रही है, इसको रियासत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और इस मामले पर असेंबली में बहस के लिए तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। जनूब मगरबी मानसून हफ्ते के रोज केरला के साहिल से टकरा गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में मानसून के तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैलने के लिए साजगार हालात हैं। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्ज हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मेदक और कामारेड्डी अजला में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला और संगारेड्डी अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने अवाम को हिदायत दी है कि वो मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। काश्तकारों को मशवरा दिया गया है कि वो फसलों की हिफाजत के लिए पेशगी इक़दाम करें। बीआरएस पार्टी की साबिक़ रुकन असम्बली जी सुनीता ने कहा कि ख़वातीन को इज्जत देने वाले तेलंगाना में बैरूनी मुल्क की खातून की तौहीन की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की मेज़बानी से मुल्क और तेलंगाना की इज्जत बैनुल अक़वामी सतह पर मिट्टी में मिला दिए हैं। आलमी हुस्न के मुकाबले को मजाक का मौजू बना दिया गया है। मिस इंग्लैंड ने कहा कि उनकी तौहीन की गई। जी सुनीता ने कहा कि भीगी धान खरीदी नहीं गई, इक़ामती स्कूल्स के मसाइल हल नहीं किए गए। मुकाबले हुस्न की तशहीर में वज़ीर आला और वज़रा की क्या ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने मुकाबले हुस्न के प्रोग्राम में 6 बार गए। इज्जत जाने वाले काम अब बंद करें, कम अज़ कम और अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। इस वाक़े पर ख़वातीन अपना रद्द अमल उन्होंने कहा कि ज़ाहिर करें। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद में बेंगलुरु कौमी शाहरा पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। शमशाबाद मंडल के पैदाशापुर में एक तेज़ रफ्तार लॉरी हादसे का शिकार हो गई थी। इत्तला मिलते ही शमशाबाद की पेट्रोलिंग मोबाइल और ट्रैफिक हाईवे मोबाइल की गाड़ियां मुकाम हादसे पर पहुंची। दोनों मोबाइल गाड़ियां किनारे पर रोककर मुलाजिमीन पुलिस हादसे का शिकार होने वाली लॉरी का जायजा ले रहे थे कि एक और तेज़ रफ्तार लॉरी आकर दोनों मोबाइल गाड़ियों को टक्कर दे दी। हादसे में कांस्टेबल विजय कुमार की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर कांस्टेबल जख्मी हो गए हैं, जिनमें यादैया की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तौर पर यह मालूम हुआ है कि लॉरी ड्राइवर की तेज रफ्तारी और बेकाबू हो जाने की वजह से यह हादसा पेश आया है। इक़दाम क़त्ल की एक वारदात में भवानी नगर पुलिस हुदूद का रहने वाला एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक 30 साला मोहम्मद साबिर उर्फ सर्किट भवानी नगर पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर है, जिस पर एक शख्स चांद ने चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। साबिर के रिश्तेदार ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि साबिर जराइम को छोड़कर शरीफाना जिंदगी बसर कर रहे थे। वो ऑटो रिक्शा के मैकेनिक के हैसियत से काम करते थे। भवानी नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस को हमलावर शख्स की तलाश है। रियासत के जिले निर्मल के कोड़मंडल के तहसीलदार दफ्तर में तैनात मंडल सर्वेयर पवार ओमाजी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा ने एसीबी को इत्तला दी थी कि पवार ओमाजी उनके अरकान खानदान की आराजी का लोकेशन मैप तैयार करने और विरासती सर्टिफिकेट के लिए ज़ैर इल्तवा फाइल को आगे बढ़ाने के बदले रुश्वत का मुतालबा कर रहा है। इब्तिदा में मुलजिम ने 25,000 रुपये रुश्वत तलब की, लेकिन शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त पर उसमें कमी की गई थी। 20 मई को वो 12,000 रुपये रुश्वत वसूल कर चुका था और बाकी 7,000 रुपये लेते वक्त एसीबी के हुक्काम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी हुक्काम ने पवार ओमाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हुक्काम का कहना है कि बदनवानी के खिलाफ कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी इसी शिद्दत से जारी रहेंगी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद को 800 इलेक्ट्रॉनिक बसेस मख्तस करनी रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी। डीजल की बसेस को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने का मौका फराहम करें, मरकजी वजीर से मुलाकात। बीआरएस में पार्टी की क़यादत का झगड़ा, कविता और केटीआर में सर्द जंग। पार्टी कायदीन दाखिली इंतशार से परेशान। वफ़ कानून के खिलाफ इंसानी जंजीर एहतजाज। शहर में मजलिसी अरकान मुक़न्नना व कॉरपोरेटर्स का नज़्म, अजला और टाउन्स में भी मुजाहिरे। मिस वर्ल्ड मुकाबले से बरतानवी हसीना की दस्तबरदारी, जामे तहकीकात करवाने केटीआर का मुतालिबा। और शमशाबाद इलाके में खौफनाक सड़क हादसा, 1 हलाक 3 जख्मी। बेकाबू तेज रफ्तार लॉरी हादसे की वजह। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।